हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस एरी। जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेके। और हमारे साथ फिर से जुड़े अरुणवा सर, एंड जिन्होंने आप बोल सकते हैं कि राउंड ग्लास पंजाब के साथ जो स्टार्टिंग ईयर थे उसमें उन्होंने काम किया है उनके साथ एज ए कंसल्टेंट। तो उनसे जानेंगे कि किस तरह की पूरी एक राउंड ग्लास पंजाब की जर्नी रही है। हम सबको पता है कि 2005 में मिनरवा एकेडमी के नाम से इस पूरा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2016 में मिनेरवा एफसी को आप बोल सकते हैं कि आई लीग में प्रमोशन मिला, और उसके नेक्स्ट सीजन ही वो आई लीग जीते। और उसके बाद 2019 में सर आई थिंक राउंड ग्लास स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने आई थिंक इन्वेस्ट किया था। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कब कब इस प्रोजेक्ट से जुड़े, और आप तब ये प्रोजेक्ट कहाँ पे था, और किस तरह की पूरी एक वो क्या बोलते हैं कि एक रोड मैप उन्होंने तब डिसाइड किया था कि इतने सालों में ये करेंगे। So there are two things to say. One is, of course, the Minerva Punjab story on one side. On the other side is the Roundglass story. Roundglass 2015, 2016 started off with grassroots projects, city-based training centers in Chandigarh. I was asked to join in 2017, late 2017, by a very, very good friend of mine, Uday Shroff, who was part of the project at the time. And we then discussed of what could be a roadmap for football in Punjab, football for round glass Punjab, and also looking at long-term I League and ISL. And on one side, the focus was to spread football across the state of Punjab, headquartering, of course, in and around Chandigarh, Mohali, and Panchkula on one side, हम्म। and what you can do in trying to build a football program, especially across rural Punjab. हम्म। And the owner, Sunny Singh, big congratulations, especially to Sunny, to what he's achieved. And Sunny was of the opinion that he wanted to fast track things, and then the whole discussion with Ranjit Bajaj happened. He bought Ranjit Bajaj's stakes in the first team and in the then under 18, under 15, under 13 teams, and that has been sort of a little bit of a backbone. While Roundglass Punjab also brought in the players that we scouted. I remember in 2018 we did a scouting program in Chandigarh with loads of boys, and that was the starting point. And Sunny was always ambitious. Sunny has always said, want to be top of the league. At the time when we were discussing it, 2017, 2018, top of the league was not very clear. Is it I League? Is it हाँ। ISL? And that switched towards ISL. But the aim was always to play top tier, and that has now been achieved. And yeah, hopefully next season, Roundglass Punjab will be playing in the Indian Super League. One thing I think I want to ask you is about the clarification about Round Glass Punjab's ISL promotion, because there is a still doubt, because ISL has not congratulated or something anything from ISL that Round Glass is promoted to the, so there is a still possibility that they might not, because you never know. So there are two, three topics. I think the ISL in the background is trying to sort out some other problem that is going on at the moment. So they have other problems to look at the moment. That is one. On हाँ। the other side, Roundglass Punjab needs to fulfill certain criteria that the ISL has set for its हम्म। franchisees, and they will have to fulfill those criteria to play. And commercially, Roundglass as a group, or Edifex, which is the group behind Roundglass. हम्म। Roundglass is more of a social cause, of a हाँ, charity NGO। organization, actually. Yeah, हम्म। that they fulfill all these criteria. There is the criteria of infrastructure connectivity in the sense of saying relatively easily Chandigarh has an airport, so therefore हम्म। that is not an issue. Is the Panchkula stadium good enough to host ISL games? Does हम्म। it have enough hospitality? Does it enough have space for the media to be there? Do you have enough training pitches in and around Chandigarh for the teams to come and play over there? So these are the topics that the current Roundglass Punjab management and team around it will have to now work on, and they've got a few weeks to then get confirmed that they can play in the ISL. And there is a one also, there is a one rules I think highlighted by some media outlets that round glass Punjab FC has to remove the round glass, because ISL has a rule that there is a no sponsor, or you can say any NGO name in the क्या बोलते हैं franchise. So is it that Punjab FC in ISL or round glass Punjab FC is?
We'll have to see, because I think Roundglass Punjab is a little different than the other teams playing. So the same question could theoretically arise with Trinity Deccan, with Gokulam Kerala. We've got multiple of these teams playing in the I League, and the corporate teams that are there. Hmm. Roundglass is not a corporate per se. It's not as if you call it Tata, Jamshedpur FC, or JSW Bangalore FC, which the registered companies actually in the background are. So therefore, that will be an interesting discussion if it's changed to just Punjab FC, or is it changed to something like Chandigarh FC or something? I don't know. It's going to be very interesting to see how that sort of name is. Maybe it's going to be RG Punjab FC. It's like Huh. SC is Bengal. Maybe that Huh. is maybe the alternative as an answer. There is a also I want to know that what are the financial capabilities of Roundglass Punjab FC, because if you want to compete in ISL, then no doubt you have win the I League. I think the second time they win the I League. So where do you see in that aspect of the club structure? Is there is a enough financial backing in the Roundglass Punjab FC to sign? Because now you have to sign very good foreign players also if you have to compete in ISL. So financially, I would think yes, Roundglass Punjab has the pockets, deep pockets needed to play ISL. So I don't see that as a problem. I think the 3-4 top teams of the I League, all of them don't have an issue. As I said, Roundglass is one of them. Srinidhi, Deccan, Gokulam as well. So all these, these are corporate teams. They have the pockets, the deep pockets needed to play Indian Super League. Unlike other teams, other teams are saying yes, we would like to, Mm. but it would Mm. have been a problem, and the financial aspect would have been a problem. Be it, let's say, for a Ethereum Road Athletic Union, for a Real Kashmir or Noka, even Mohammedan Sporting. All that they're saying, all of this is not that easy. Hmm. Armana is saying, please sign Himanshu Jangra and Gurkirat. They will definitely. They will. I think yesterday they posted that they are scouting in Manipur for the younger players. I think Round Glass Punjab. So I think their scouting has also been, I think, one of the aspect, because if we see the teams, I think there are a lot of northeastern players. So, what's your opinion about the scouting of Round Glass Punjab? See, the scouting that's happening in Manipur from tomorrow onwards, that Hmm. is for juniors. So it's for Ah. for young players. Hmm. So it's for the academy. They will do their homework. They will have to do their homework in trying to find the right players. Certain players, Valpuya, Naurem, they're all Hmm. on loan from Mumbai City. So the question is it going to be extended? Pranjal as well. So there are three Mumbai City players who are actually at Hmm. Ranglas Punjab at the moment on loan. Hmm. That is one. The other thing, are your foreigners good enough? There are established foreigners in the I League, be it a Luka Machin, Chencho, or Juan Mera, who have Hmm. shown that they are top quality in this league. Even Kiran Limbu as a goalkeeper. So those four have sort of shown their mettle. Are they good enough to play ISL? That's going to be a question which will be asked. And again, they will have to strengthen in the core. Other players are also on loan from other teams, so therefore, yes, they will have to change the team if they're gonna be successful in the ISL. I think Ajay Chetri is from also from Bengaluru from loan. I Yeah, think. yeah, yeah. So Bangalore there FC. are a lot of players. Another question is about the coaching staff. Do you see the changes in coaching staff, because they are now promoted into the ISL, so they need or the the coaching staff will remain the same? That's a decision that the management has to take. I think they will have to talk to the ISL as well and see if this structure that they have is good enough and it's capable enough, or if they have to make changes, and that's going to be, again, I think the infrastructure questions are the first ones to sort. I Hmm. think ideally you'll say, listen, I would like to keep the staff that I have Hmm. and build on this. I mean, you've won a league, so therefore, normally you would say, listen, let's keep this team, let's keep this management, and then try and build on it. So therefore, that's going to be an interesting one to see. What about this round glass should focus in Ludhiana and Jalandhar, Real Punjab? And there is a, I think yesterday I also saw that someone from Haryana posted that this will be the new ISL home ground. And there is a also one, I think the previous stadium of Roundglass Punjab FC. I think the 30,000 capacity stadium. I forget the name. So I think which will be the according to you,
will be the ideal, you can say, home ground? See, for me, it will be have to be in and around Chandigarh. Again, even though it's being said that Ludhiana and Jalandhar, yes, of course, Ludhiana does have a stadium, but the base of Roundglass Punjab, or the base of Roundglass, is in Mohali sector 67. So therefore, they will try and be in and around the Tri-City region of Chandigarh. So even someone yesterday, I congratulated them, and someone wrote a tweet to me saying that there is a stadium in Ambala, but even Mm, Ambala is quite a bit off from Chandigarh. So I think they will try and see if Panchkula can be upgraded, and maybe I know that there are plans of a stadium, of infrastructure for an academy and other things. mm, But it'll need time. So therefore, I think they will have to see if that can be the case. Worst case, as has been done in the past in the NFL or in the I League, JCT used to do that in the past quite a number of years, that they had to switch and go to Delhi. That is mm, the worst case, but I hope they don't. I hope that they're mm. able to do whatever is necessary in and around Chandigarh, so that they can play in either in Panchkula, or if another other venue in that Tri-City region. How much this club ready to play against biggest club of India like Mohan Bagan BFC Kerala Blasters? um, I think for me, um, the point here is that they will have to strengthen. Mm, Again, I think if I look at the top 6, 7, 8 teams in the ISL, yeah, let's say the eight teams in the top teams in the ISL, um, Roundglass Punjab will have to do some work to catch up. If I mm. see again Northeast United, no disrespect, but what they've played last this season is not good enough. Um, yeah. And one thing also I want to know that they are the first team now from the northern part, because there is a no any other team in ISL from north. How much that impact will be there, because they can grab that North Indian fan base to their you can say fan base club. So how do you say that? What are the plans of club to attract more and more fan base of North India? See, that's for the club to try and work on. Again, I think in the last few years, the focus was always on the football. You've had also this transition from Minerva to Roundglass also happening during the pandemic. So you had 2 years where the club played in the bubble in Kolkata. This is the first season that they're properly playing at home in Panchkula. I think that they need to be given time. Surely they will have to work on the marketing of the club, of trying to attract fans, and with a higher level of football set to come potentially to the Chandigarh region, that will automatically draw fans to the games. So therefore, I hope that they're able to build a bigger fan following, and more people come and support the team. And also, there is a recently completed Santosh Trophy where Punjab finished the fourth and played in semi-final. So, how do you see that Punjab's local talent will be crucial for the round class? See, Punjab has been at the top for decades. If you talk of the generations of Jarnail Singh, Inder Singh, Sukhvinder Singh was a long time our national team coach, with JCT playing at the top. You have a number of quality goalkeepers from Punjab. If Gurpreet, Amrinder, yeah, so Gill, all these boys. So there is quality in there. Hamajot Khabra is also there. So therefore, Hmm. quality is there. The question is, what makes sense for them? Who could be signed? What makes sense for the club? And of course, the club has also always had a good link into Manipur and Mizoram. So that will also play a role in the players that they sign. Couple of days ago, there is a one comment from Jovan Vukomanovic that training ground and training center is really essential for any club, because in Europe there is a system that if you don't have a very good training center or training ground, then a big player will not you can say consider to coming to your club. So how do you say that that is an important part of the round glass or any other ISL teams, because we know that all the ISL clubs, some of the are lacking on that aspect also. We already see that Goa has a enough infrastructure where the quality infrastructure is there.
See, the point is, yes, Ivan has a point. On the other side, I would say it also depends on how much money you're offering the player. So, Mm, the first season of the Indian Super League, most of the clubs didn't have anything. It was about the money aspect which made players come to India. And still today, most of the foreigners come to India because they are paid high salaries. So therefore, nice to say, but it's more of a myth. Yes, of course, clubs need to have better infrastructure, and many clubs have worked towards it. The under 17 World Cup has helped to develop better infrastructure in a lot of places. As I said, Roundglass Punjab is still a very, very young club, a mm, young entity as a football entity, and it will take time, and they will need to build on that, and that's they need to be given that time. As mm, it doesn't happen overnight in an Indian context. If I want to build something and say I want infrastructure to be ready, how long it takes to get the land, get possession of the land, then to build this, do that, it'll take 2 3 years. So therefore, give them time. This entity has a lot of potential, and I would hope that they could be an interesting addition to the Indian Super League next season, and could challenge the one or the other club. Rabindra is saying, look, first two season of Punjab will struggle. They will hard to find the pace of Indian players in ISL. Also, playing style in ISL and I League is very different. What's your take on this? To some extent, yes, but again, it depends on what kind of players you sign. So that's the point, right? If you have the quality available, and you can sign them, then you can potentially challenge for top six. I don't know if that's going to be the aim of the club, or to say, listen, let's try and finish top eight or something. But again, I think that this club has a basic structure. They've got a lot of young players that have come through this season in the I League, and it's another step up. Surely it's a huge step up from the I League to the ISL, but if they get the right results, if they get the right home advantage, home support, who knows what Roundglass Punjab can do in the ISL. I think they have a very good you can say first mover advantage in North India. I think because you can grab that fan base and you can say build around also on that front also. Armana is saying, sir, please tell me it's possible to make a quality stadium in Punjab and make Punjab the hub of football. Are you trying to talk with Punjab government? So first things first, I don't work for Roundglass Punjab anymore. I used to work Uh, for them. So therefore, there have been talks in the past with the Punjab government about infrastructure. Sadly, as I said, it's across India. It's always an issue, and to get that infrastructure in place. Um, Again, yes, Punjab would need a quality stadium, ideally in and around Chandigarh, as I said, maybe even Mohali. I don't know. The club, the franchise is trying to do as much as it can, but again, with Panchkula having been developed, even though it's in Haryana, but it has been developed in the last few years. So therefore, that's already a good sign for football in that region, and hopefully, it can be even more developed in the coming years. Currently, I think Panchkula's capacity is around 12,000. Yeah, it's about 10 to 12,000. Yeah, that's the formal capacity. You can build it up, as you can, if you've seen the shots in the I League. There's quite a bit of space around the stadium, Uh, so therefore there are opportunities. But again, I think for the team, as we know, Mumbai City is a good example. A smaller yes. stadium, but with people coming out, it's better to have that than rather build a 30 40,000 seater stadium and it's empty. So Uh, therefore, the club needs to take its time. It needs to, even if it says 2 3 years, let us play in Panchkula, utilize the ground, utilize the facilities, and then maybe moved into a bigger stadium. Most probably that is the way forward. Munmunji is saying that sir views on development of ISL in last 7 8 years. Well, it has developed. I think if you go back to where the ISL was in 2014 when it was started, where Indian football was, I think again, of course, we're talking about infrastructure, but in 2014 we had no infrastructure. I mean, even our stadiums were not good enough. Hmm. So that way, I think a lot of infrastructure has been built, and but more is needed. Hmm. Our TV coverage has improved leaps and bounds. I think the fan experience has improved via the ISL quite a lot. So all of these Hmm. factors have improved quite a bit since the ISL started in 2014.
One thing, sir, I want to know from you is that we see Santosh Trophy in Riyadh, and there is a good quality. I think the hybrid pitch. I think one of the reason for at least what I noticed that the play from all the four teams looks really brilliant. Comparatively, you can compare with also ISL, I think. And India only have one hybrid pitch that is in Goa, Patoda Stadium. So, according to you, that hybrid pitches is the essential to improve the, you can say, quality of the field, or you can say. Can be, doesn't have to be. I think it's also weather. It's, I think, also a little bit of more adrenaline pumping through your bloods because you're Mm, playing abroad. You're playing in a stadium where Cristiano Ronaldo played 3 days earlier. You know, all these small little factors do play a role. And again, I think, and I put out a tweet a little earlier with you know with mm, I thought the positives was the players looked much better. better. The quality of the game was good. The TV production was good. We used for the first time VR Uh, in an Indian football competition, so that's good. Sadly, the fans, of course, did not come. mm, Even though you know we've had the expat or have the expat numbers in Saudi, and therefore you know it's an experiment from the All India Football Federation, from the new All India Football Federation, and I think despite all the criticism, I think overall it was a success. Views on decreasing number of foreigner from 4 to 3 playing 11. Coaches will be forced to play either an Indian forward or midfielder. Um, yeah, at the moment, I think we're growing. So our problem is Mm, also, do we have a big enough player pool to fill all mm, teams? You know, I think mm. 11, 12 teams in the ISL is quite a bit. And at the moment, I don't think our players pool is big enough. So I would stick with the four players, foreigners rule, because I think we need to also maintain a certain level, a certain level of quality as well in our football. And any idea about the Roundglass, you can say, youth team, or is it the Minerva youth team where they collaborate? I mean about B team or something like that. No, those two setups are completely separated now. They don't have nothing to do with each Okay, other. So Mav Academy does its own thing, and Roundglass Punjab does its own thing. They've built on their academies. They have their youth teams in the youth setup within the AFF system. So yeah, they're there. Okay, so they are completely different. Yeah. One thing is also that recently Reliance Foundation announced the Youth Development League is back. So, what's your view about that? Because this time they are planning to 250 matches with nine different regions and much more. You can say bigger comparative to last season. See, it's a good step. The more matches players are playing, the better it is for Indian football and for the players. They need that exposure. They need the number of matches, and from that perspective, it's great that something like this is happening so that the boys get match exposure. Hmm. Ravindra Singh, I know there is so many quality physical players in Punjab like Gil Khabra and Gurpreet, but infrastructure and academy should be there. Like in Kerala has academy and so many tough. Um, I wouldn't agree to that. I think there's a lot of football in Punjab. I think people forget that. I think there is every village has a football ground. You know, uh, uh, um, so therefore I would think that and there are pockets where there are quality academies and there are multiple academies playing in the Punjab State League. So therefore you've got even teams, the border security forces has a team, CRPF has a team, Punjab Police has a team. So, even those institutional teams are part of the system. So, therefore, I think Punjab's system is not as bad as people think. As I said, there are players' names mentioned, mainly, of course, with a background either from JCT or Khabra, for example, is an ex TFA player. But there is at least when I was there and when I had a look around Punjab, there is quite a bit of football over there. It's only that it's not reported as much as most probably in Kerala or Bengal or Goa or to some extent even in the northeast. Munmunji is asking a views on Robin Yadav free kick Yeah, quality, nothing more to add. quality. Yeah, that was Uh, class. do you see him in the ISL big club next season, Robin Yadav?
Oh, I was having a discussion yesterday with someone in regard to Santosh Trophy players moving to the ISL, and if I look at how many made it from last season to last season's final from Bengal and from Kerala, Hmm. um, I think nobody has actually made it into the ISL and played for an ISL team really properly. You know, there was Hmm. um, yeah, one of the Kerala boys, Uni Krishnan, who got a few minutes at East Bengal, but that was it. Most of them were the East Bengal reserves. Hmm. Um, it's a big jump from Santosh Trophy, where you're normally playing I League 2 or local leagues, to ISL. That's a huge, huge jump. So therefore, it is not as easy to say, listen, the players should move from that level to that level. And again, as we've discussed, I think the level, the quality of these games in Riyadh was much, much higher than if the final had been anywhere in India. Okay. Is coaching lacking in Punjab? They play a very simple kick and run type tactics. Yes and no. Some of the teams do that. Some teams don't. So therefore, again, I think it's a question of which teams play how. And for me, yeah. So therefore, you have to find the right thing which fits you. So therefore, I wouldn't say it is always simple. I think, again, I think even if you can play the basics good, then it's quality. The coaching can be, yes, but it not only in Punjab. I think across India, the coaching at youth level needs to be better. One thing is also there is that we generally see whenever we talk about football, we generally state like West Bengal, Northeast, Kerala Goa comes in mind. But the recently the you can say improvement in football of you can say Karnataka, where Bengaluru League is doing really well, or you can say Sikkim Premier League has rebranded and come up with a very good you can say plan, or you can say Meghalaya we see in Santosh Trophy how they made it. Punjab is doing really good. So what are the other states do you find that they are also making a good progress in football? See, I think it's important that football spreads across India. So therefore, it's not only the pockets that we always speak about. As you've mentioned, Karnataka has done very, very well, and but they've worked on it over the last 5 6 years. Again, Mizoram has come up over the last 10 12 years because they've done a lot of work. So therefore, there is no shortcut to success. No shortcut. You have to work hard. You have to work long, and that is what is needed. Otherwise, it will not happen. And that's the challenge that you have with football in India, that a lot of people want success quickly, shortly, and that does not happen. You need time to develop. Bro, have you seen KBFC may have banned for 2 years, but TRP rating will down. FSDL is now defending because they have the right of telecast. The views will go down. That will definitely भाई impact, but let's first judgment तो आ जाए, फिर हम ज़्यादा उसके ऊपर comment कर पाएंगे. Present domestic competition conducted by Punjab FA. They have a Punjab हाँ Super League, or हाँ. Super Soccer League, as they call it, as a top tier. They have a first division, they have a second division, they play inter district. So they have the structure. Punjab has it, and yeah. Um, so therefore, There, Punjab is doing really good. Like there are a lot of expectation from Delhi. So, do you find any improvement in Delhi? Is there any chance that Delhi is improving? it's a challenge. I think Delhi has its own problems in the capital with infrastructure. We've just seen Sudeva Delhi relegated from Relegated. the I League, and therefore, yeah, it's a very, very, very difficult challenge. Do you think this Punjab club is able to influence some North state like UP, Haryana, UK, Uttarakhand? Definitely, definitely. I think. I think again, it's again, it has to come out of the states. It's not that something that is for the AFF to say what to do, not to do. I think it's for the state association, district Hmm. association, to develop their local football. And Hmm. and again, especially this northern belt. Look at what is happening, for example, in Rajasthan. Not only through हाँ. Rajasthan United, but also with the Zinc.
football academy over there. Look at what, for example, is happening in Arunachal Pradesh, who are doing very, very well at youth level, even in youth women's football. So Hmm. therefore, it has to come from the states. It cannot be enforced by the federation. Say you now have to develop football. It will not work. Hmm. And Hmm. again, I said Karnataka has been around for decades. Again, Mysore had its heydays in the 50s and 60s. It's after Hmm. 54 years that someone from that state has won the Santosh Trophy, under the name of Karnataka, not under the old name of Mysore. So therefore, it takes time. It is not done overnight. So therefore, it, the pressure should be applied onto the state associations, on the presidents, on the secretaries, that they in the states do the work. स्टेट एसोसिएशन की बात निकले तो मैं जानना चाहूंगा कि स्टिल देर इज ए सम स्टेट एसोसिएशन दैट आर नॉट द यू कैन से गुड इनफ फॉर नॉट वर्किंग ऑन द राइट डायरेक्शन. What are you able to do? Again, the status was the only thing that is you do. You have elections in a few years, every few years, and then you have to vote in the right people to run it. So for that to happen, the right people need to come up in the districts, and they need to come forward. They need to run their football in the districts. They need to organize the leagues. They need to organize the clubs from the districts. Then you get into the state association, and then you try to change the state association. That is the only way this can happen. It will not be someone coming from outside and changing things. That is not how a democratic football system works. I think good point, because there are a lot of fans thinking that all things have to be done by AFF. I think if you want to develop a grassroots, then the state football FS has a big part, I think, to play. If you want to develop a grassroots and to come up with a very good young talents, so there is that. And I think sir have a time limits. So today there is a this short you can say. Uh, अपीयरेंस फ्रॉम देम, लेकिन आगे आने वाले टाइम में गाइस हम सर को फिर से जरूर बुलाएंगे और भी सारे टॉपिक्स की बात करेंगे, क्योंकि वो जर्मन फुटबॉल में भी काफी वहाँ पे जर्मनी में इन्वॉल्व है, तो वहां से भी जानेंगे कि यूरोपियन फुटबॉल में कैसे सिस्टम वर्क करती है, किस तरह की वहाँ की एकेडमीज और उन सब के बारे में भी सर से हम जरूर आइडिया लेंगे. तो नेक्स्ट टाइम हम सर से जरूर उसके ऊपर बात करेंगे. और सर का ट्विटर का प्रोफाइल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जरूर उसको फॉलो कीजिए. वहाँ पे इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपको इंडियन फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल दोनों के बारे में वहाँ पे जानने को मिलेंगे. और आज आपके जो भी क्वेश्चन बचे हो बचा के रखिए, डेफिनेटली नेक्स्ट 1-2 वीक में हम फिर से सर के साथ करेंगे, और तब एक प्रॉपर लंबा टाइम लेके करेंगे ताकि आपके भी सारे क्वेश्चन वहाँ पे आंसर किए जाए. तो थैंक यू वेरी मच सर फिर से जुड़ने के लिए, और आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से इंडियन फुटबॉल के ऊपर बातें चलती रहेगी. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, Harry, and speak to you soon. ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक सर आई विल कंटिन्यू. आप Take it. थोड़ा समय. Take it. ओके I'll edit, huh? Exit, huh? ओके Bye ओके bye, everyone. Bye. बाय. ओके. It's not a soccer, it's a football. Okay भाई रिबिन भाई. छेत्री एमर्स फ्रॉम दिल्ली लीग. यस भाई, दिल्ली लीग ने मुनमुन जी पिछले लास्ट में उनके अच्छा किया था, लेकिन आप वही वही दिक्कत है कि भाई आपका जो स्टेट फेज और वो सारी चीजें होती है, अगर वहां पे कुछ ऑफिशियल ऐसे आ जाते हैं तो पूरा आपका जो रोड मैप है वो डगमगा जाता है. तो वाला सीन है. स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एकेडमीज फेल्ड इन फुटबॉल ओनली. होलीचरण नाजरी इज ए साइड प्रोडक्ट ऑफ. हाँ, ये एग्री करता हूँ इस बात में कि वहां पे थोड़ा सा हमने उस आई थिंक द मेन जो मैंने अभी बताया, आई थिंक इट हैज टू बी स्टेट एफएस. आई थिंक अगर वो ग्रास रूट लेवल से आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट लीग्स एंड स्टेट लीग सही तरीके से उसमें डिवीजन करके सही तरीके से ऑर्गेनाइज भी करवाने लगे, तो देर इज ए लॉट ऑफ पूल्स. और आप चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज भले ही पिच, आप मैं नहीं बोल रहा कि आप सारे ही क्या बोलते हैं कि एक ही उससे सारे क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल टर्फ बना दीजिए, लेकिन भाई आप उस डायरेक्शन में वर्क तो कीजिए. आई थिंक देयर आर ए लॉट ऑफ स्टेट्स कि जहाँ पे अभी भी कोई डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल टर्फ भी नहीं है. तो आई थिंक उस डायरेक्शन में अगर वर्क होगा तो हमें आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा वहाँ पे वो मिलेगा रिजल्ट. In the North India, it's only Punjab which has history in football and still going strong. No other North Indian state are cares about football. नहीं नहीं मनप्रीत भाई, अभी 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 आप देखिए कश्मीर इज डूइंग रियली वेल. हिमाचल ने भी अच्छा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्रोग्रेशन अभी किया है. उत्तराखंड इज ऑल्सो मेकिंग ए गुड प्रोग्रेशन. तो अभी अभी धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी बात भी मैं सहमत हूँ कि जो पंजाब है वो हब रहा है. मतलब जैसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं या फिर हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं या फिर केरला गोवा का नाम लेते हैं, उसी तरह से अगर आपको नॉर्थ में किसी एक फुटबॉलिंग पावर हाउस स्टेट का नाम लेना होगा तो डेफिनेटली वो पंजाब ही आएगा.
एंड आई थिंक वो एक लेगेसी रही है पंजाब की, जो पिछले कुछ टाइम में थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि डाउन हो गई थी, लेकिन अभी सही टाइम आ चुका है कि आपके पास आईएसएल का क्लब भी अब आ चुका है, तो यहाँ से आप इसके अराउंड अगर आप बिल्ड करेंगे तो आपका ग्रास रूट भी डेवलप हो सकता है और सारी चीजें हो सकते हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं गाइस, प्लीज से इससे हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सबका सपोर्ट चाहिए गाइस, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम इंडियन फुटबॉल के ऊपर इसी तरह के और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग लोगों को हम बुलाते रहे, और उनसे भी हम इंडियन फुटबॉल को और ज्यादा जितना कवर करेंगे। और बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर आपका स्टेट को कवर करना चाहते हैं कि आपके स्टेट में फुटबॉल की क्या रियल सिचुएशन है, क्योंकि वो आपको ज्यादा पता होगी। और इसके लिए सिंपल सा काम भी आप कर सकते हैं कि आप अपने स्टेट एफएस की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जानिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के ऑफिस कहाँ पे, कहाँ कौन कौन से लोग वर्क कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा पूछताछ कीजिए, तो आइडिया मिलेगा। और उससे आप गाइज थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, तो हम सब मिलके इसको और आगे लेके जा सकते हैं। और एक अवेयरनेस की जरूरत भी है गाइस। मुनमुन जी पूछ रहे हैं रीजन फॉर सक्सेस ऑफ चंडीगढ़ एकेडमी इज इट गवर्नमेंट फंडेड एकेडमी? नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट फंडेड आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मिनर्वा हैज डन रियली गुड इन दैट चंडीगढ़ एरिया, और वो पूरा एक प्रॉपर उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बिल्ड कर दिया है, तो उन्होंने भी काफी वो हेल्प किया है। माइंडसेट हमारे से जुड़े। हेलो भाई, हॉर्मीपाम इज आल्सो साई प्रोडक्ट, यस हॉर्मीपाम इज। नीरज रावत, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आपका सपोर्ट चाहिए भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। एनबी फुटबॉल इज नागालैंड दीमापुर फुटबॉल स्टेडियम का हाल देखो। Definitely, I will check it out. Dimapur Football Stadium. Okay. What's the NB football? If you have any idea about Nagaland football, let me know in the comment or my you can say social media. I will definitely make a video about that also. I think North India should follow South India type of development. Like in South India, it's more football everywhere. मेरे हिसाब से रिविन भाई, आई थिंक कॉपी करने से ज्यादा आपकी जो वहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं कल्चर, या फिर आपके वहाँ पे किस तरह से ज्यादा आप फुटबॉल को एक मेन डिस्कशन में एक एटलीस्ट आफ्टर क्रिकेट के बाद ला सकते हो, उस डायरेक्शन में ज्यादा वर्क होना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपकी स्टेट की सभी देखिए, इंडिया में आपको पता है कि एवरी स्टेट हैज देयर क्वालिटीज एंड वीकनेसेस, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना फ्यूचर का फुटबॉल का रोड में अगर सभी स्टेट एफएस उसी के डायरेक्शन में अगर डेवलप करेंगे, तो उसको सक्सेस मिलेगी। और जैसे सर ने बोला कि कर्नाटक ने भाई, ये जो कर्नाटक को रिसेंटली सक्सेस मिली है, चाहे वो संतोष ट्रॉफी में मिले हो, चाहे वो भी स्टेफर्ड कप हुआ है उसमें मिली हो, उसका रीजन भाई वो कोई एक दो साल में मिली हुई सक्सेस नहीं है, पिछले कुछ डिकेड से दे हैव मेड ए रियली गुड, आप बोल सकते कि इंप्रूवमेंट्स इन कर्नाटका, पर्टिकुलरली बेंगलोर में, जिस तरह की वो बेंगलोर की लीग है, काफी प्रोफेशनल लीग है। तो इस तरह के आप मिजोरम का मैंने जैसे वीडियो बनाया था, आप मेरे उसमें देख सकते हैं चैनल पे, कि मिजोरम ने पिछले 10 सालों में 2012 में जो एक पूरा काया पलट किया। अभी आप देखिए सिक्किम ने जो इस सीजन से जो सिक्किम प्रीमियर लीग है उसको पूरा रिब्रांडेड किया है, और जो फॉर्मर प्लेयर्स है उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखा के पूरा एक प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की है। तो जब तक गाइज वो प्रोफेशनलिज्म और वो सारी चीजें नहीं आएगी, तब तक आप उस स्टेट में उस तरह से फुटबॉल को डेवलप होता हुआ नहीं देखेंगे। बेंग बेंग भाई सिंह लियो मेसिस इंटरव्यू विद द क्लब मीडियाज इन एन आवर, चेक करेंगे भाई बेंग बेंग भाई उसको भी। रियल मेड्रिड लीग जीत सकती है, शांतनु भाई से रियल मेड्रिड के भाई चांसेस अभी तो करंटली मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि वो भी मोमेंटम में नहीं है, दैट्स द मेन रीजन। बारसा कैसे भी करके वो नैरो मार्जिन विन निकाल रही है, तो वो वाला भाई है शांतनु भाई। तो लेट्स सी कि भाई आगे आने वाला जो क्लासिको है, आई थिंक वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा मेरे हिसाब से। भाई कुछ पता लगा रीमैच हो रहा है? ब्रिजेश भाई आज क्या बोलते हैं एएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी की आज मीटिंग थी, जहां पे उन्होंने बेंगलोर से भी रिस्पॉन्ड मांगा है। एंड जो फॉर्मर डिसिप्लिनरी कमेटी में जो मेंबर थे, उनका जो आज एक इंटरव्यू आया, उसने तो ये बोला है कि रीमैच का कोई सवाल ही नहीं बनता। और मेरे को भी लग रहा है कि रीमैच का कोई सवाल नहीं बचता, क्योंकि कल ही आपका सेमीफाइनल पहला रहेगा, और उसका सारे टिकट्स भी बढ़ चुके हैं, सारी उसकी प्रिपरेशन भी हो चुकी है। और आई डोंट थिंक सो कि एएफएफ इतना बड़ा एक, और आई थिंक डिफेंड करने के लिए केरला ब्लास्टर के पास उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर उन्होंने वो मैच खत्म कर लिया होता और पूरा होता, तो कुछ डिफेंड भी कर सकते थे। जो फॉर्मर डिसिप्लिनरी कमेटी में थे आईएफएफ के, उनका ये मानना है कि शायद इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड आज वहां पे मीटिंग थी एएफएफ में डिसिप्लिनरी कमेटी की, जहां पे बेंगलोर से भी उसका रिस्पॉन्स मांगा गया है। एंड शायद कल तक हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन देर इज ए आई थिंक वेरी वेरी लेस, आई थिंक 1% से भी कम चांस इसमें देखूंगा कि ये रिप्ले होगा। आई डोंट थिंक सो कि उसके अलावा मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे हेवी बैन आता हुआ दिख रहा है, तो वाला सीन है। कश्मीर इज ग्रेट ब्रो इन फुटबॉल, कश्मीर इज डूइंग रियली वेल।
शांतनु भाई लेग हो रहा है थोड़ा सा भाई, वो शांतनु भाई मेरा इंटरनेट का इश्यू है, तो सॉरी फॉर दैट। आई थिंक वॉइस क्लियर आ रही होगी लेकिन वीडियो में थोड़ा सा लेग होगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई। नो, रियल मैड्रिड विल नॉट विन ला लीगा, दे आर 9 पॉइंट्स बिहाइंड बार्सिलोना, इट्स इम्पॉसिबल टू विन ऑल मैचेस फॉर रियल मैड्रिड। डेफिनेटली। एंड भाई अगर आप क्या बोलते हैं कि उसमें भी प्रोग्रेस करोगे चैंपियंस लीग में, तो वहां पे भी अब नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में टफ मैचेस आएंगे, तो दे हैव टू फाइंड द बैलेंस। एंड कुणाल मार्शेट भाई हमारे साथ जुड़े, हेलो ब्रदर, वेलकम बैक। मेघालय लेफ्ट फिंगर वाज ऑन फायर इन संतोष ट्रॉफी एंड डिजर्व टू प्ले इन आईएसएल। मेघालय के मेरे को काफी प्लेयर अच्छे लगे हैं टू बी ऑनेस्ट, नाम तो मेरे को अभी उनके सबके आते नहीं है, लेकिन जो फाइनल में जो 2 गोल मारे थे उसका परफॉर्मेंस अच्छे रहे, और उसकी उसके जो स्ट्राइकर है उसका भी मतलब सॉलिड लगा है, तो दे लुक्स गुड। लेकिन जैसे सर ने बोला, आई थिंक इट्स अ बिग स्टेप टू डायरेक्टली सिलेक्टेड ऑन आईएसएल। आई थिंक आई लीग में भी अगर वो आ जाते हैं देन देयर इज अ गुड। रिविन रॉय बोल रहे ग्लोरी ग्लोरी यूनाइटेड वी आर बैक। बिल्कुल बिल्कुल रिविन भाई, आई थिंक कल जितना लिवरपूल फैन खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा कल बारसा फैन आई थिंक वो जो यूनाइटेड का हार है उससे खुश हुए होंगे। मैं भी नाम भूल गया, नाम भूल गया मैं, उसके थोड़े से डिफिकल्ट नाम है सारे के, लैंगडो आता है सारे नेमों में, मोस्ट ऑफ द नेमो मैंने देखा है, और प्रोनाउंस करना भी मेरे लिए तो काफी मुश्किल है, तो अगर कभी मिस प्रोनाउंस भी हो जाए तो सॉरी फॉर दैट गाइस। लेकिन वो वाला सीन है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस भाई मेघालय जैसे, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो हम 2 ही स्टेट जनरली उसमें टॉक्स में आते हैं फुटबॉल में, एक तो मणिपुर एंड एक मिजोरम, लेकिन मेघालय अच्छा कर रही है, जैसे सर ने बोला अरुणाचल प्रदेश इज डूइंग रियली वेल, सिक्किम इज डूइंग रियली वेल, आसाम से भी अब अच्छी बातें निकल के आ रही है, तो अच्छे भाई, अच्छे साइंस है कि काफी सारे स्टेट्स है कि जो फुटबॉल में उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। एंड जैसे मैंने बोला कि भाई स्टेट एफएस का रोल आई थिंक हैज रियली रियली क्रूशियल यहाँ पे रोल प्ले करता है, कि किस तरह की आप फाइनेंशियल सपोर्टिंग प्ले करते हो, किस तरह से आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हो, आई थिंक उसके ऊपर ज्यादा वो रहता है डिपेंडेंट। व्हेन दे बीटन आवर इंजरी टीम विदाउट पेड्री गाविड डेम्बेले एंड बुसी, दे आर लाइक ओ वी आर द बेस्ट टीम। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कल मजा आ गया, कल प्राइम लिवरपूल की झलक देखा, नॉस्टैल्जिया, बिल्कुल भाई कल प्राइम दिखी भाई। संतोष ट्रॉफी लेवल इज इंप्रूविंग, यस संतोष ट्रॉफी लेवल इज इंप्रूविंग, बिल्कुल भाई। एंड आई थिंक हमारे प्रेसिडेंट है आईएफएफ के, उन्होंने भी एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट वहां पे दिया कि मैं देखना चाहता हूँ कि संतोष ट्रॉफी से भी संतोष ट्रॉफी उस लेवल पे पहुंचे कि वहां से भी डायरेक्ट आपको इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में खेलने का मौका मिले, तो आई थिंक वो एक बड़ा 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 अनाउंसमेंट है। आई थिंक उस लेवल पे संतोष ट्रॉफी को लेके जाना आई थिंक इज गोइंग टू बी चैलेंज। आई थिंक उसके लिए सिंपल सा वो रास्ता है कि भाई स्टेट एफएस अगर अपनी क्या बोलते हैं कि ग्रास रूट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लीग्स और वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज करवाने लगे, तो डेफिनेटली टैलेंट पोर्ट आने लगेगा, प्लेयरों की क्वालिटी स्किल्स वहाँ पे अच्छी देखने को मिलेगी, और मोर एंड मोर स्टेट्स, जैसे कि हम सबको पता है कि वेस्ट बंगाल या केरला फेवरेट्स रहती है हर बार संतोष ट्रॉफी में, लेकिन इस बार कर्नाटका, मेघालय, पंजाब सबने सरप्राइज किया, तो आई थिंक और भी ज्यादा स्टेट्स फिर हमें दिखेंगे कि जिनकी आप बोल सकते हैं कि संतोष ट्रॉफी में परफॉर्मेंस अच्छी है। असद भाई हमारे साथ जुड़े, हेलो असद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम सो हैप्पी दैट इंडियन पीपल इज नाउ मोर फोकसिंग ऑन फुटबॉल, डेफिनेटली आई थिंक इन इंडिया फुटबॉल इज बिकमिंग द टॉक ऑफ द टाउन मेरे हिसाब से, धीरे धीरे यंगर जनरेशन में आई थिंक, एंड ये अच्छा एक चेंज है क्योंकि यू हैव अ मल्टीपल स्पोर्ट्स, एंड सिर्फ ये मतलब ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स भाई, स्पोर्ट्स से आप देखिए काफी इकोनॉमी को भी काफी इम्पेक्ट पड़ता है गाइस, और एक इम्प्रूव होती है इकोनॉमी, अब जॉब क्रिएशन जो भी बोले काफी सारे सेक्टर को, अब देखिए अभी एक राउंड ग्लास पंजाब अब आईएसएल में आया है, तो उनको एक अच्छी सोशल मीडिया टीम चाहिए होंगी, तो जो सोशल मीडिया के जो मतलब जो लोग हैं एक्सपर्ट चाहिए होंगे, उसके अलावा स्काउटिंग बढ़ानी पड़ेगी उनको, उसके अलावा आप देखिए कि पूरा एक अपनी मीडिया टीम रखनी पड़ेगी, सारी आप देखिए कितनी सारी वहां से जॉब क्रिएशन होगी एक एक टीम के, जो आप आई लीग में उतना ज्यादा उनको वो जरूरत नहीं थी, वो क्या बोलते हैं कि उस तरह की एक्सपांसिस की, जो अब वो अगर आईएसएल में आ रहे हैं, तो जो आईएसएल के क्राइटेरिया है, जैसे सर ने बोला कि कुछ आपके क्राइटेरिया होते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें, तो उसमें आप देखिए इवेंचुअली जॉब क्रिएशन होगी, तो भाई स्पोर्ट इज ए, आप देखिए स्पेन मल्टीपल स्पोर्ट में इतना अच्छा करता है, तो हमको भी ऐसा चाहिए कि सिर्फ क्रिकेट में, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि क्रिकेट लेट डाउन हो जाए और दूसरे स्पोर्ट आगे बढ़ जाए, भाई देयर इज ए इनफ पीपल इन इंडिया कि हम सभी स्पोर्ट्स में
अच्छा कर पाए गाइस, तो उसी से भाई कुछ बात बनेगी। एंड टैलेंट भी है, सब कुछ है, सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक प्रॉपर मैनेजमेंट की मेरे हिसाब से जरूरत है, एंड प्रॉपर गाइडेंस की अगर वहां पे जरूरत है, देन वी आर ऑल सेट। आई थिंक वी आर हेडिंग इन राइट डायरेक्शन मेरे हिसाब से। एंड ऑल्सो एपिक क्रिकेट इज डिग्रेडिंग ए लॉट। डिग्रेडिंग तो भाई अभी रिवन भाई मैं नहीं बोलूंगा टू बी ऑनेस्ट, अभी भी डिग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपेरेटिवली आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वो क्रेज हुआ, लेकिन वो भी एक अपने चेंज में जा रहा है। वो भी पहले मतलब सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट था, अब आईपीएल ने ज्यादा टेक ओवर कर दिया है, तो क्रिकेट भी अपने क्या बोलते हैं कि एक ट्रांजिशन पे जा रहा है, जहाँ पे ओडीआईज और भी ज्यादा कम दिखी जा रही है, तो T20 एंड टेस्ट के ऊपर फोकस बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे भी आप बोल सकते हैं कि रिवोल्यूशनाइज हो रहा है। तो आई थिंक मैं तो चाहूंगा कि मल्टीपल स्पोर्ट भाई इंडिया में क्या बोलते हैं फले फूले, तो वाला चाहता हूँ। आई एग्री क्रिकेट इज डिग्रेड उस सेंस में जो मैंने बोला कि उसमें डिग्रेड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो अभी भी आईपीएल इज बिकमिंग मच मोर बिगर एंड बिगर एवरी ईयर। आप देखिए जिस तरह की उसकी रेवेन्यू है, डिजिटल राइट्स है, तो आई थिंक आप देखिए कि टेस्ट में भी 15-20 लाख लोग देखते हैं भाई सुबह सुबह, तो ये दिखाता है कि देर इज ऑल्सो देर इज अ क्रेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है ना भाई क्रिकेट का, तो आई थिंक फुटबॉल को भी उसी डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए। मुनमुन जी बोल रही है कि विच आईएसएल क्लब यू सपोर्ट। मुनमुन जी मैं अभी तो किसी आईएसएल क्लब को टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा मतलब ऑनेस्ट आंसर है, आपको जो भी लगे, लेकिन अभी भी करंटली मैं किसी भी क्या बोल सकते हैं कि आईएसएल क्लब को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरे को एक तो मुंबई सिटी का गेम प्ले अच्छा देखने को लगता है, एक हैदराबाद का लगता है मनोलो मार्केस का, केरला ब्लास्टर का भी मेरे को थोड़ा सा पसंद आता है टू बी ऑनेस्ट, एंड बेंगलुरु एफसी का ठीक ठाक। तो ये 3-4 क्लबों का मेरे को गेम प्ले अच्छा लगता है। अभी भी मैंने मेरा दिल किसी एक क्लब के अभी टिका नहीं, क्योंकि मैंने अगर प्रॉपर तरीके से आईएसएल को इसी सीजन से कवर करना चालू किया है, तो अभी भी उतना ज्यादा, इससे पहले मैं इन एंड ऑफ देखता था, अभी फाइनल देख लिया, सेमीफाइनल देख लिए, उतना ज्यादा नहीं देखता था। तो अभी भी मेरा एक, और मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर मेरे स्टेट गुजरात से कोई क्लब आ जाए तो 1-2 साल में, 2-3 सालों में, तो फिर मतलब तो फिर तो वहीं दिल लग जाएगा, लेकिन लेट्स सी भाई कि कहाँ पे वो बात बनती है। सौरभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर ज्वाइनिंग। क्या लगता है राउंड क्लास पंजाब टॉप 6 फिनिश करेगी आईएसएल में? आई थिंक दैट हैज टू बी लॉट डिपेंड ऑन दी साइनिंग्स, व्हाट आर द साइनिंग्स दे विल मेड इन पर्टिकुलरली फॉरेन प्लेयर्स, कौन कौन से दे साइन करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड रहेगा मेरे हिसाब से सौरभ भाई, और उसके बाद ज्यादा आइडिया मिलेगा कि कहाँ तक वो नेक्स्ट आईएसएल सीजन में पहुंचेंगे। और आई थिंक आप देखिए एवरी सीजन आई थिंक आईएसएल क्लब्स बिकमिंग ए मोर एंड मोर यू कैन से वेल मैनेज, वेल प्लान्ड। आप देखिए 2-3 क्लब को छोड़ के कि जहाँ पे मैनेजमेंट ही उतना बेकार सा है, तो उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। बाकी आप देखिए 8 क्लब आप ले लीजिए कि जिनका एक और ज्यादा नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन आप बोल रहे कि बेटर प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट साइन। तो लेट्स सी कि कौन से साइनिंग्स पे पहले राउंड ग्लास पंजाब करती है, उसके बाद ज्यादा हमें आइडिया मिलेगा। रोबिन रोय बोल रहे नो ब्रो इट्स डिग्रेडेड इट्स अ लॉट, हैव यू सीन दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ क्रिकेट नेशन बट लुक देन नाउ दे हैव एंटर इन राउंड ऑफ 16। अरे मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं इंडिया की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो आप देखिए क्रिकेट इज अबाउट 10-15 कंट्रीज स्पोर्ट भाई, साइनिंग पे डिपेंड करता है ब्रो। यस यस बस साइनिंग साइनिंग इज गोइंग टू बी मेजर key factor to decide where they will finish. Next season, select a club, model the channel as a single club's basic. It will help develop fan culture. मनमोहन जी मैं मेरा जो इनिशियल एम है कि आई वांट टू, नो डाउट वो तो एक बन जाएगा, लेकिन आई वांट टू यू कैन से कवर द मोर एंड मोर इंडियन फुटबॉल। सो उसमें सभी क्लब को मैं कवर करूंगा टू बी ऑनेस्ट, और मेरा दिल अभी तो मतलब एफसी बार्सिलोना पे लगा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली मैं आईएसएल में भी मेरे को किसी एक का एक गेम प्लान, और अभी देखिए आईएसएल में चीज क्या हो रही है कि एवरी सीजन काफी सारे प्लेयर चेंज होते रहते हैं, तो वो एक क्या बोलते हैं कि प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी हमें नहीं देखने को मिल रही। तो जैसे ही वो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी किसी क्लब में बनेगी, तो डेफिनेटली वो इवेंचुअली आ ही जाएगा दिल की भाई इसका मजा आता है देखने में, तो वाला सीन है। एंड डेफिनेटली भाई मैं मोर एंड मोर कवर करना चाहूंगा इंडियन फुटबॉल को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लब को हम कवर करें, क्योंकि वी नीड टू कवर मोर इंडियन फुटबॉल, एंड आप सबका सपोर्ट चाहिए उसके लिए, रेगुलर सपोर्ट। तो डेफिनेटली भाई आगे आने वाले टाइम आप किस क्लब को मुनमुन जी करती है या करते हैं, मेरे को सॉरी अभी पता नहीं है, तो बता दीजिए कि आप किस क्लब को सपोर्ट करते हैं भाई। Ivan Vukomanovich, Manilo Marquez and Des Buckingham are the best because they are more focusing on Indian players and making them world class. I agree, I agree। जिस तरह से भाई विपिन मोहनन का जो खेलना था, वो आई थिंक आई लिटिल बिट एग्री, लिटिल बिट नहीं मतलब 100% एग्री रिबिन रॉय से, कि दे आर यूजिंग वेरी गुड यंग इंडियन प्लेयर्स भाई।
राजीव भाई बोल रहे हैं लव यू ब्रदर। बिल्कुल, लेकिन एक 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 जो क्वेश्चन मेरे, और एक मतलब मैं इसे वो नहीं बोलूंगा कि क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन वी नीड ए मोर मोर स्ट्राइकर फ्रॉम इंडिया। एंड आप देखिए मेजर जो हमने कल भी या परसों भी बात की थी, कि काफी सारे आप देखिए कि इंडियन आईएसएल क्लब से वो फॉरेन स्ट्राइकर को प्रीफर करते हैं। एंड वी नीड टू चेंज दैट, बिकॉज इवेंचुअली वी नीड ए इन इंडियन टीम आल्सो गुड स्ट्राइकर। अब सुनील सर का 1-2 साल बचा है, जो भी उनके पास बचा है, उसके बाद देखिए वी नीड ए मोर, यू कैन से, स्ट्राइकर। और अभी आप करंटली देखिए तो सभी आईएसएल टीम्स फॉरेन स्ट्राइकर को ही खिलाती है। क्या आपको लगता है लिवरपूल बैक करेगा? आई मेरा मेरा प्रिडिक्शन है दे विल फिनिश इन टॉप 4, और अगर टॉप 4 नहीं तो 5th तो मैं मान के ही चल रहा हूँ, 5th। भाई हमारा सपोर्ट आपके साथ है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई। इस सपोर्ट में मैं जो भी लोग देख रहे हैं, सिर्फ सिंपल सा मेरे आपका सपोर्ट मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल जब भी मैं वीडियो को डालूं या फिर लाइव करूं, तो सिंपल एक आपका कमेंट एंड आपका एक लाइक चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि और लोगों तक लेके जाए। क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर अगर वीडियो नहीं देखते, तब तक भाई यूट्यूब दूसरों को भी सजेस्ट उतना ज्यादा नहीं करता। तो ये वाला सीन है। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, उससे इतनी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, आपको जब भी टाइम मिले आप सिर्फ वीडियो में जाइए, 30 सेकंड 1 मिनट आपको जो भी सही लगे देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको जो भी लगे, और इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी कमेंट में जरूर बता दीजिए, या फिर आपको जो टॉपिक पे चाहिए वीडियो वो भी बता दीजिए, तो मैं इसके ऊपर ट्राई जरूर करूंगा। तो इतना ही सपोर्ट चाहिए आपसे। mindset, I think all 6 coaches are good though at to finish in top 6 ASL, I think agree। आई थिंक जो बेंगलुरु के कोच है ग्रेसन, उसने भी अच्छा कमबैक किया। फिर जोय फेरांडो ने भी एटीके मोहन बगान का अच्छा कमबैक करवाया। तो गुड। आई थिंक ओडिशा एफसी का मेरे को अभी भी थोड़ा सा वो डाउट है। या वी नीड स्ट्राइकर, यस यस वही भाई। अभी तो एक शिवा शक्ति एक वो दिख रहा है प्रॉपर। इनवाइट मोर गेस्ट लाइक टुडेज, आएंगे आगे आने वाले टाइम में। एक ये अभी आप लोग जुड़े तो अनाउंसमेंट कर देता हूँ, और रंजीत बजाज सर भी अनाउंसमेंट करेंगे 8 तारीख, परसों, मतलब परसों 9 बजे भी लाइव होने वाला है रंजीत बजाज सर के साथ मिनरवा एकेडमी का। पूरा हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने मिनरवा एकेडमी को इतने कम टाइम में इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलिंग एकेडमी बना दिया। तो रंजीत बजाज सर के साथ 8 तारीख 9 बजे, वो भी अपने सोशल मीडिया पे अभी अनाउंसमेंट करेंगे। तो 8 तारीख को 8 मार्च 9 PM लाइव आ जाना है वहां पे। उसके साथ प्रॉपर लंबा हम तो आपका जो भी क्वेश्चन हो इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड, रंजीत बजाज सर के साथ लाइव है, आप अपने क्वेश्चन रेडी रखिए। और 9 तारीख को भी इसी तरह से आगे आने वाले टाइम में मुंबई सिटी से एक प्लेयर के साथ भी मेरी बात हो चुकी है। तो जैसे ही आईएसएल फिनिश होता है, तो मुंबई सिटी से भी एक प्लेयर के साथ आपको एक पॉडकास्ट जरूर दिखेगा। तो आगे आने वाले टाइम में काफी सारे पॉडकास्ट लाइन अप है, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। मैं बार बार ये बोलूंगा कि आपका सपोर्ट नहीं होगा तो जो गेस्ट भी देखेगा भाई, अगर किसी के चैनल पे जाना जा रहा है, तो क्या उनकी ऑडियंस है कि नहीं है, तो कन्विंस करना मेरे लिए भी थोड़ा सा उनको मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए चाहता हूँ आप अपने फ्रेंड फैमिलीज में जो भी फुटबॉल देखते हो उसको शेयर कीजिए चैनल, एंड उनसे भी बोलिए। तो इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। नो नो यूसीएल के बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, यूसीएल में आई डोंट थिंक सो राजीव भाई, आई डोंट थिंक सो। इट्स अ वेरी स्टिफ चैलेंज। आप बोलेंगे रियल मैड्रिड भले ही कैसा भी कर रही हो, लेकिन वहां पे नहीं है। मेरे को भाई मेरा हिंदी आप समझ लेना, बंगाली हूँ। नहीं नहीं, मैं गुजराती हूँ भाई राजीव भाई, तो आप भी मेरा हिंदी समझ लेना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है भाई। Clubs can go for 3-5-2 or 4-4-2 formation to include Indian striker if they have quality. फॉर्मेशन से ज्यादा मेरे को लगता है कि रोल स्पेसिफिक, कि किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करते हो, मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट भाई। नॉट ओनली द फॉर्मेशन मैटर। आप देखिए शिवा शक्ति को ऐसा नहीं है कि सोलो स्ट्राइकर ही खिलाते हैं, रोहित कृष्णा के साथ खिलाया है, सुनील सर तीनों साथ में भी खेले एक मैच में। तो इट्स मोर अबाउट कि ऑन फील्ड उसको किस तरह से यूटिलाइज, टेक्टिकल प्लान में किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बोल रहे इनवाइट फॉर 20 ग्राम्स होस्ट अर्जुन पंडित एंड एमए। ओके, मैं चेकआउट करूंगा यूट्यूब पे और उससे रीच आउट करूंगा अगर वो एग्री होते हैं और कोई रिस्पॉन्स आता है। 420 ग्राम्स मतलब ये यूट्यूब चैनल है क्या है, मेरे को थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। अच्छा 420 ग्राम्स यूट्यूब चैनल में दिख रहा है। हाँ यूट्यूब चैनल है, हाँ। अरे हाँ वो तो ये तो सर, तो ओके डेफिनेटली मैं उनको सर को डेफिनेटली वो सेंड करूंगा। अगर उनका कोई रिस्पॉन्स आता है और बात बनती है तो डेफिनेटली भाई। केबीएफसी वर्सेस बीएफसी रिमैच होगा क्या? नहीं नहीं, अभी से एक्सी भाई देयर इज ए वेरी लेस 0.0000001%।
चांसेस है रीमैच के, क्योंकि कल ही सेमीफाइनल है, तो देयर इज ऑल्सो नो टाइम लेफ्ट, तो वो वाला चीज है भाई। एटीके कोच आई डोंट थिंक सो बिकॉज ही इज मोर फोकसिंग ऑन फॉरेन प्लेयर्स। एटीके के कोच पे चेंज होने की भी बात चल रही थी बीच में, तो लेट्स सी कि भाई पहले सीजन कहाँ पे फिनिश करते हैं, एंड उसके ऊपर उसके बाद हमें ज्यादा आइडिया मिलेगा कि क्या उनका है। डू नॉट इनवाइट 420 ग्राम्स एंड खेलना आशीष नेगी, दे आर ईगो ब्लैंक सपोर्टर्स। हम ईगो स्ट्रीमिंग की बात नहीं करेंगे भाई, माइंडसेट भाई, हम दूसरी बात करेंगे जो उनको जो मतलब वो वाली बात है, और उनका भी भाई वो जानेंगे क्या बोलते हैं point of view. And Musawir bhai, अरे thank you very much bhai, please go check out to UTH को also, they are he is also covering Indian football very well, तो please guys हम दोनों को support की जरूरत है। वो वाला बात है, माइंडसेट पे आप टेंशन ना को करो भाई। भाई ऐसे ही डेवलपमेंट चलता रहा तो नेक्स्ट 5 और 6 ईयर्स में अच्छा इंडियन टीम तैयार हो जाएगा, ब्लू टाइगर्स। एग्री, आई एग्री। और जो भी लोग, मैं एक सिंपल सी यहाँ पे एक और आपको क्या बोलते हैं, डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ना कि 2026 वर्ल्ड कप की, वो थोड़ा सा भाई मैं एक रियलिटी बताना चाहूंगा कि उतना ज्यादा भाई एक्सपेक्ट ना करें आप। पहले आप एशिया में तो अच्छा कर ले भाई, फिर आप वर्ल्ड कप में। भाई ऐसा तो नहीं करना है हमको कि भाई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हो गए और वहां पे बेइज्जती करा के आ गए भाई। इससे तो अच्छा है कि भाई हम एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाए। तो आई थिंक पहले हमें एशिया में एक देखना है, और एएफसी जो एशियन कप आ रहा है वो काफी एक बड़ा हमारे लिए एक क्या बोलते हैं कि वो एक आईना होगा कि कहाँ पे हम एज ए प्रिपरेशन है, वो हमें मिरर दिखाएगा, रियलिटी चेक देगा कि हम कहाँ पे एज ए प्रोग्रेशन है। और जो गाइज अभी जो यंग बच्चे आ रहे हैं ना, जो आई थिंक 15 से 20 साल के, जो अभी करंटली यूथ सेटअप में है इंडिया के, जो भी लीग खेल रहे हो, जो भी स्टेट में खेल रहे हो, वो आपको 5-6 साल के बाद दिखेंगे, वो मच मोर बेटर क्वालिटी के होंगे कंपेयर टू जो अभी हमारे इंडियन प्लेयर्स अभी जो भी खेलते हैं आईएसएल में, जो भी लीग में। तो क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो आगे आने वाले आई थिंक 4-5 साल तो आपको मिनिमम देने पड़ेंगे, जो रिजल्ट आपको चाहिए, देखना चाहते हो आप इंडियन फुटबॉल में। बोलिए मनीता गौरांग जी बोल रहे वॉचिंग, अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मनीता जी, एंड इसी तरह से आपका सपोर्ट चाहिए भाई, देते रहिए सपोर्ट, एंड वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। आर मनाई सिंह भाई 11 मई को होगा क्या? यस 11 मई को, एंड इंडिया से एएफएफ के प्रेसिडेंट सॉरी कल्याण चौबे जी, उनको इनविटेशन मिला है, इंडियन कोच इगोर स्टेमिक को इनविटेशन है, और साजी प्रभाकरण जी को भी हो, तो इन सबको इनविटेशन मिला है। तो 11 मई को ये होने वाला है ड्रॉ, एंड वहां पे पता चलेगा कि इंडिया कौन से ग्रुप में आएगी एफसी एशियन कप में। तो 11 मई को है भाई ये। मुशीर भाई का कमेंट हमने ले लिया था भाई। वो डू यू थिंक कैन रिप्लेस छेत्री? आई फील पंडिता इज अ फ्यूचर इन हिज कोचेस कॉन्फिडेंस। पंडिता आई थिंक शी नीड्स टू चेंज द क्लब नेक्स्ट सीजन, टू बी ऑनेस्ट, टू गेट मोर चांसेस। एंड क्योंकि अगर आप आईएसएल में अगर आप रेगुलरली नहीं खेलोगे तो आपको इंडियन टीम में जगह बनाना मुश्किल है भाई, इज सिंपल एज दैट। तो आपको रेगुलरली खेलना पड़ेगा, तभी आप कंटेंशन में आओगे इंडियन टीम के, तो वाला सीन है। तो मुनमुन जी फर्स्ट आई वांट टू सी हिम इन अ क्लब वेयर ही गेट रेगुलर गेम टाइम, जैसे शिवा शक्ति को कैसे अब रेगुलर गेम टाइम मिले, तो अगर वो अपनी फिजिकलिटी इंप्रूव करता है तो ही कैन बी ही कैन बी अ गुड चॉइस, तो वाला सीन है। तो सबसे पहले वो करना पड़ेगा उसको, पंडिता को, तभी कुछ बात वहां पे बनेगी। एंड और भी लीग्स आई थिंक, एक मैं सोशल मीडिया पे कल देख रहा था, एक बिहार में भी एक कोई लोकल मैच चल रहा था फुटबॉल का, वहां पे भी भाई 3-4 हजार लोग थे भाई बिहार में। आई एम रियली सरप्राइज टू सी दैट भाई साहब, मतलब हमको ऐसे कितने इंडियन पॉकेट्स अभी तक मालूम नहीं है कि जहाँ पे फुटबॉल इज डूइंग रियली वेल, लेकिन उसका उतना ज्यादा आपको मीडिया में कोई कवरेज नहीं दिखता, और हमको लगता है कि 3-4 स्टेट्स ही है कि जो फुटबॉल में कर रहे हैं। तो आई थिंक एवरी स्टेट हैज अ वन दैट डिस्ट्रिक्ट, वन दैट तहसील, या फिर जो भी बोले छोटा सा पॉकेट 2-3 डिस्ट्रिक्ट का, कि जहाँ पे फुटबॉल इज ए मच मोर बिगर देन क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को लगता है कि सभी सभी स्टेट में है, लेकिन सिर्फ उसको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन की जरूरत है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एंड दे विल ब्लूम। आई थिंक दैट्स द एंड गेम मेरे हिसाब से। भाई कोई चांस नहीं है 2026 फीफा का, वैसे भी रसिया के आने के बाद और कंपटीशन बढ़ेगा। वही है बात। और आई थिंक मैं इसीलिए मैं बताना चाहता था कि नो डाउट टीम्स बड़ी है, 48 टीम्स हो चुकी है, लेकिन देयर इज ए हमारे चांसेस अभी भी काफी कम है। मे बी पंडिता कैन जॉइन टीम्स लाइक नॉर्थ ईस्ट। हाँ, गुड गुड शाउट आउट, कि क्योंकि वो भी अपने रिबिल्ड करेंगे अभी। और ईस्ट बंगाल ने भी अपना रिबिल्ड अनाउंसमेंट किया है आज, मैं वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में उसके ऊपर, कि
उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार की है ईस्ट बंगाल ने, क्योंकि फैन का इतना सारा प्रोटेस्ट आ गया कि इवेंचुअली लिस्ट बनाई है। लिस्ट तो थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं कि आउट ऑफ दी वर्ल्ड ही बना डाली है, कि जिसमें सारे आईएसएल के बेस्ट प्लेयरों को डाल दिया है एज अ टारगेट। लेकिन लेट्स सी कि कौन कौन से, और कोचेस के भी 2-3 नाम आए हैं, तो देखेंगे वो। भाई क्या कल अंडर 20 एशियन कप वुमेन्स क्वालिफायर है, इंडिया वैसे सिंगापुर का, लगता है अंडर 20 टीम्स क्वालिफाई करेगी एशियन कप के। हाँ भाई कल है, कल है वो मैच। एंड देखिए अंडर एशियन सॉरी वुमेन्स टीम का पिछले कुछ टाइम में, चाहे आप सीनियर टीम्स ले लीजिए, जूनियर टीम ले, उतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। एंड वी लुक इनटू दैट मैटर आल्सो, आई थिंक एएफएफ हैज टू फोकस ऑन दैट एरिया आल्सो। तो लेट्स सी, मुश्किल है भाई, लेकिन लेट्स सी भाई, मेरे को तो चांसेस कम लग रहे हैं। पंडिता हैज 9 गोल्स इन 40 गेम्स, वन ऑफ द बेस्ट गोल मैच स्टेट्स। देखिए मुझे मेरे को आई मीन टैलेंट के ऊपर कोई डाउट नहीं है पंडिता के, सिर्फ उसको चाहिए कि भाई एक प्रॉपर रेगुलर गेम टाइम मिले एंड ही इज रेडी, तो वाला सीन है। क्योंकि हमने काफी देखा है कि अंडर 17 से जो जब भी प्लेयरों में जो पोटेंशियल है, मैं सिर्फ पंडिता की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एज ए जनरल बात कर रहा हूँ कि अंडर 17 में जो हमें टैलेंट दिखता है, वो सीनियर लेवल पे रेप्लिकेट क्यों नहीं हो पाता था पिछले कुछ सालों में या फिर इससे पहले। उसका सिंपल सा रीजन था कि भाई अंडर 17 के पास उसको उतना ज्यादा रेगुलर गेम टाइम, चाहे वो आई लीग में चला जाए किसी भी क्लब में या फिर आईएसएल के किसी क्लब में चला जाए, उसको एज अ बेंच वार्मर ही यूज किया जाता था। तो दैट्स दी मेन रीजन कि हमने काफी सारे अंडर 17 के ऐसे प्लेयर्स देखे कि जिन्होंने अंडर 17 में अच्छा किया था, लेकिन वो सीनियर लेवल पे उस तरह से रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो जो ये सारी यूथ लीग्स आ रही है, जो रिलायंस डेवलपमेंट की जो यूथ लीग है, आई थिंक बेहतरीन डिसीजन है भाई कि 250 मैचेस भाई, अंडर 21 की वो सबसे बड़ी लीग है इंडिया की, रिलायंस डेवलपमेंट लीग। एंड 250 मैचेस, 250 मैचेस करवाना, और एवरी टीम को वहां पे क्या बोलते हैं श्योरिटी दी गई कि एटलीस्ट आप 10 गेम खेलेगी। जो भी क्लब उसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो भी एकेडमीज, उसको एश्योरेंस दिया गया है कि आपको एटलीस्ट 10 मैच मिलेगी ही मिलेगी। तो दैट्स अ ग्रेट भाई, ग्रेट ग्रेट। भाई संतोष ट्रॉफी में सभी इंडियन प्लेयर्स क्या क्वालिटी गेम खेल रहे थे, वही वही मैं काफी, अभिषेक भाई टू बी ऑनेस्ट मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था वो क्वालिटी देख के, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक देयर हैज बीन अ, मतलब वो दिखता है भाई, कहीं से भी नहीं लग रहा था मेरे को कि ये संतोष ट्रॉफी का मैच चल रहा है भाई। एंड देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स जो उसमें मतलब इम्पैक्ट डाली है। एक तो प्लेयरों के लिए भी एक वो मोटिवेशन कि भाई इतने बड़े स्टेडियम में भाई, जैसे हम एज अ फुटबॉल फैन में एक सिंपल सा, काफी सारे लोग मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि भाई वहां पे लेके जाके, देखिए सभी चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं, तो हमें दोनों साइड से सोचना चाहिए। तो भाई हम एज अ फुटबॉल फैन, अगर मैं एज ए एफसी बार्सिलोना का प्लेयर फैन हूँ, तो मेरा सपना क्या होगा कि मैं एक बार भाई कैंप नाउ पे जाके बार्सिलोना को लाइव देखूं। तो जो भी भाई यंग लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा है, उसका सपना होता है भाई कि इतने बड़े स्टेडियम में, कि जहाँ पे रोनाल्डो मेसी जैसे प्लेयरों ने मैचेस खेले हैं, जहाँ पे एल क्लासिको हुआ था अभी, जहाँ पे मिलान डार्बी हुई थी, उस स्टेडियम में जाके भाई खेलना इज अ बिग थिंग भाई, वो हम नहीं समझ सकते भाई। वो जो प्लेयर होते हैं उसी में वो क्या बोलते हैं, वो मोटिवेशन होता है कि भाई इतने बड़े स्टेडियम में खेलना है। तो वो वाली चीज होती है। तो काफी सारे लोग इसको क्या बोलते हैं उल्टा भी समझ रहे थे, तो वो वाली बात नहीं है भाई, उनके लिए वो मोटिवेशन है भाई कि किसी स्टेट टीम को उतने बड़े स्टेडियम में वीआर फैसिलिटी पहली बार यूज हो रही है, प्रॉपर एक प्रोफेशनलिज्म। मैंने जो बोला ना कि भाई प्रोफेशनलिज्म इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू इम्प्रूव इन फुटबॉल इन इंडिया। भाई न्यू आईएसएल सेशन में बिड ओपन होगा जस्ट लाइक अहमदाबाद एफसी। इसीलिए भाई अहमदाबाद यूनाइटेड जो अभी आप मैं एक इसमें बताना चाहूंगा कि जो बेंगलुरु यूनाइटेड, जिन्होंने अभी स्टेफर्ड कप भी जीता है आज चेन्नई एफसी को हरा के, उसका जो उसको जो जिसने सेटअप किया था, नेदरलैंड के कोई है वो कोच है, उसका नाम मैं भूल गया, उन्होंने ही अहमदाबाद यूनाइटेड करके अभी गुजरात में भी एक एकेडमी और क्लब चालू किया है। तो उनसे मेरे को होप है कि 2-3 साल में वो अच्छा एक डेवलपमेंट करेंगे, और शायद हमें अहमदाबाद यूनाइटेड, एआरएएफसी है नो डाउट गुजरात से, जो आई लीग 2 में खेल रही है, लेकिन अहमदाबाद यूनाइटेड मेरे को लग रहा है कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, फंडिंग भी है उसके पास, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, डीप पॉकेट्स अगर आपको आईएसएल में जाना है। तो बीड बीड तो अभी मेरे को नहीं लगता कि बीड सिस्टम पे ये लोग जाएंगे सुरेंद्र कुमार जी, लेकिन दिख रहा है मेरे को कि वो होगा भाई। Whether we qualify for 26 or not is in God's hand, but we should focus on putting
up a strong fight to win games and qualify. Definitely, I think that's the thing I want. मेरे को तो सिंपल सा देखना है कि जब भी इंडियन टीम खेले, आपके जो प्लेयर आईएसएल में जिस तरह से खेल रहे हैं उस तरह की परफॉर्मेंस आपको इंडियन नेशनल टीम के लिए रेप्लिकेट करनी है। वो टचेस दिखाने हैं, फालतू की बोले नहीं उड़ानी है, सिंपल एज दैट भाई। आप अच्छे टचेस लीजिए, अच्छे पासेस कीजिए, आप नो डाउट आप मैच हार जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कंपटीशन दीजिए, अच्छी फुटबॉल खेलिए भाई। एक 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 वो देखिए, एज ए इंडियन फैन हमको भी एक देखना है अच्छा फुटबॉल, तो वो वाली चीज है। तो आप एटलीस्ट दिखाए तो सही कि भाई हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं भाई। आप अब उसी लेवल पे खेलते जाएंगे ईयर बाय ईयर, तो भाई फैन भी इवेंचुअली वो डिसअपॉइंट ही होगा भाई। तो एग्री विथ यू भाई। ISL reserve team can play in development league, I League 2, Santosh Trophy and State League better than ISL and I League. Yes, ISL की रिजर्व टीम भाई डेवलपमेंट लीग में है और वो खेलेंगी। लास्ट टाइम बेंगलुरु बी ही जीती थी, वहां पे भी केरला ब्लास्टर बी को हराया था फाइनल में उन्होंने। तो इस बार भी ऐसा ही है, I League 2, I League और ISL की बी टीम से वहां पे खेल सकती है डेवलपमेंट लीग में भाई। प्रियांशु मलिक भाई पहली बार जुड़े, थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर ज्वाइनिंग। रोबिन सिंह फ्री किक, अरे रोबिन सिंह भाई साहब, रोबिन सिंह नहीं भाई, रोबिन यादव किलर। एंड अभी उसने क्या बोलते हैं पूरा कर्नाटका में देखा भाई, वो ओपन बस पे पूरा उनका वेलकम हुआ है। अभी उन्होंने लाइव किया था इंस्टाग्राम पे, एक आई थिंक 1 घंटे पहले, 1 या 1.5 घंटे पहले, तो पूरा मतलब अच्छी तरीके से वेलकम हुआ है। तो दैट शोज कि भाई कितना ज्यादा आप बोल सकते कि कर्नाटका में फुटबॉल ने एक अलग ही डायरेक्शन में वो ले लिया है मोड। तो भाई ओपन बस में सब सेलिब्रेट कर रहे हैं संतोष ट्रॉफी 54 ईयर के बाद। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट भाई, बिग अचीवमेंट तो वाली चीज है। और कोई गाइस आपके इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं। बाकी हम इसको यहीं पे रैप अप करेंगे। और मैंने जैसे बोला कि 8 तारीख को 8 मार्च 9 PM आप जरूर जुड़िएगा रंजीत बजाज सर के साथ। हम पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हो इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड, एकेडमीज के रिलेटेड, वो वहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जरूर उसमें भी जुड़िएगा, आप सबका सपोर्ट इसी तरह से चाहिए। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ी देर हूँ मैं अभी, मेरे पास तो वैसे थोड़ा सा टाइम है, तो बता दीजिए। बाकी कल की मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल पहला सेमीफाइनल होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी मुंबई सिटी वर्सेस बेंगलुरु एफसी। एंड लास्ट मैच में 1-0 से हराया था बेंगलुरु ने, और मुंबई सिटी का जो विनिंग स्ट्रेक था 18 मैचेस का अनबीटेबल रन, उसको वहां पे उन्होंने ही रोका था। तो कल भाई फर्स्ट लेग मुंबई फुटबॉल एरिना में है, तो मजा तो आने वाला है। एंड ग्रेसन वर्सेस देश बकिंगम की टेक्टिकल दोनों ही, क्योंकि अलग अलग आप देखिए प्रेगमेटिक है ग्रेसन, जबकि देश बकिंगम दोनों एक ही कंट्री से आते हैं, इंग्लैंड से ही है। लेकिन आप देखिए दोनों की कंप्लीटली डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल है। ये थोड़ा सा प्रेगमेटिक है, ये थोड़ा सा मोर अटैकिंग है, ये थोड़ा सा पोजीशन बेस्ड है बकिंगम आप देखे तो। और जबकि इसका थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं डिफेंसिव रहता है, 3-5-2 फॉर्मेशन, जबकि इसका 4-3-3। तो तगड़ा मैच तो कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाइस। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन, कमेंट में मेरे को जरूर बताइए। व्हेन विल मार्च फ्रेंडली स्क्वाड गेट सिलेक्टेड? आई थिंक मेरे को लगता है कि जैसे ही ये सेमीफाइनल खत्म होंगे 13 मार्च को, क्योंकि 14 को कैंप लगना है, जो इगो स्टेमिक ने जो लाइव में बताया था। तो मेरे को लगता है कि या तो 12 या 13 तारीख को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दे विल कॉल्ड अप द प्लेयर्स मेरे हिसाब से। डू अ लाइव स्ट्रीम वीकली ऑन अ फिक्स टाइम और 2-3 मंथ में 300 लाइव व्यूअर्स हो जाएंगे। डेफिनेटली मेरा 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 अब से एग्री करता हूँ मैं। लाइव स्ट्रीम में जरूर करूंगा और 9 PM ही मेरा टाइम है भाई। 9 PM को मैं लाइव होता हूँ, चाहे यूरोपियन टॉपिक भी मैं भले ही कवर कर रहा हूँ, लेकिन आप जुड़ सकते हो इंडियन फुटबॉल के बारे में भी कवर कर जरूर पूछ सकते हो। तो वाला सिंपल है, मैं लाइव करता ही करता हूँ एवरीडे। 9 PM मेरा टाइम है, तो 9 बजे आपको आ जाना है, सिंपल एज दैट। इंडियन चाहे कोई सा भी टॉपिक चल रहा हो, आप इंडियन फुटबॉल के बारे में कभी भी मेरे को यहाँ पे चैट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि जब से बार्सिलोना को मैं थोड़ा कवर कर रहा हूँ मैं, तो उसका भी थोड़ा सा कंटेंट बनाना जरूरी है। हमारे काफी साथी वो भी देखते हैं, तो वाली चीज है। तो आपको मतलब ये और एक ये जो काफी सारे लोग, एक यहाँ पे मैं क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ कि जैसे हम क्या बोलते हैं कि काफी सारे लोगों के मन में होता है कि क्रिकेट ही हमारे कंट्री में बड़ा है, बाकी स्पोर्ट उसकी बदौलत नहीं बढ़ रहे। तो भाई उसमें क्रिकेट की कोई गलती नहीं है। तो उसी तरह से भाई काफी सारे हमारे फैन बेस, जो इंडियन फुटबॉल फैन बेस है, उसको ऐसा है कि भाई सभी लोग यूरोपियन फुटबॉल को ही देखते हैं, इंडियन फुटबॉल को भी देखता ही नहीं है, ऐसा ऐसा वैसा है। तो ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए भाई गाइस। हमको भाई फुटबॉल को प्रमोट करना है इंडिया में, चाहे वो किसी भी तरीके से हो।
फुटबॉल की बातें होनी चाहिए भाई सबसे पहले। अगर आप डिस्कशन ही, आप 5 लोग बैठे हैं जिसमें 4 लोग क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानते हैं एक फुटबॉल के, अगर उसको पहले आप यूरोपियन फुटबॉल दिखा के भी अट्रैक्ट कर सकते हो फुटबॉल की तरफ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको इंडियन फुटबॉल दिखा के भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हो फुटबॉल की तरफ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले भाई आपको वो कल्चर बनाना पड़ेगा कि फुटबॉल की एटलीस्ट बात तो हो भाई। जैसे भाई वर्ल्ड कप का क्रिकेट का कब चल रहा हो तो आप कहीं गली मोहल्लों पे पान पान के गल्ले पे चले जाओ, बात होगी क्रिकेट की भाई। जो बंदा मतलब रेगुलरली फॉलो भी नहीं कर रहा वो भी बात करेगा कि भाई हाँ ये सारी चीजें। तो इस तरह से भाई पहले फुटबॉल की बातें तो स्टार्ट करो, फुटबॉल की बातें स्टार्ट होगी उसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे फॉल इन प्लेस होगी भाई। उसी तरह से अवेयरनेस बढ़ेगी, पेरेंट्स अपने बच्चों को उस डायरेक्शन में सोचेंगे भाई। तो वाली चीज है भाई। तो इसीलिए कभी भी जो भी लोग देख रहे हैं कभी भी ये मत मानना कि ये यूरोपियन फुटबॉल कवर कर रहा है इंडियन फुटबॉल। हमको फुटबॉल को प्रमोट करना है इंडिया में, दैट्स सिंपल एज दैट। चाहे वो यूरोपियन फुटबॉल से हो चाहे इंडियन फुटबॉल से हो, मैं दोनों कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। कल का मैच अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी मैच जीत सकता है। यस कल का मैच अनप्रिडिक्टेबल है एंड कल 7 सवा 7 बजे से आप लोग जुट जाइएगा, लाइव वॉच अलोंग करेंगे, साथ में देखेंगे और मजे करेंगे। तो सेमीफाइनल 1 देखना बनता है एंड मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कुछ सरप्राइज, तो अगर वो फॉल इन प्लेस हो गया तो मजा आ जाएगा। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून टू वॉच आउट फॉर दैट। अभी तो श्योरिटी से बता नहीं सकता लेकिन प्लान कर रहा हूँ कुछ में आगे आने वाले दिनों में। वुमेन्स प्रीमियर लीग की क्वालिटी आईएसएल से अच्छी है, ऐसा क्यों? वो उसका एक रीजन है अभिषेक भाई कि इंडियन क्रिकेट का इतना वेल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है अभी कि आप किसी भी छोटे से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाओ तो वहां भी आपको क्रिकेट का कुछ ना कुछ अच्छा ग्राउंड और वो सब दिख जाएगा। तो सिंपल एज दैट। तो क्रिकेट आप बोल सकते हैं ना कि वो घर घर में घुस चुका है। तो फुटबॉल अभी तक वो ऐसे घर घर में नहीं घुसा है भाई, तो वहां पे हमको घुसाना है कि एवरी हाउस होल्ड हैज ए वन फुटबॉल फैन। तो वो जब हम टारगेट कवर कर लेंगे फिर हम भी और नेक्स्ट सीजन से आई थिंक आईएसएल की भी क्वालिटी भाई उस सेंस में बढ़ेगी क्योंकि आई थिंक वाईकॉम लेगी ये हॉटस्टार से। तो मैं तो मतलब मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की इनकी क्वालिटीज है। आई डोंट सी कि इसका कोई सेंस बनता है इसके साथ कंटिन्यू करना भाई। बंगाल में भी तो फुटबॉल की ही सभी बात करते हैं वही जैसे बंगाल है ना, बंगाल केरला गोवा ऐसे ही भाई बाकी स्टेट में भी करना है। लेकिन गुजरात को फुटबॉल ज्यादा अच्छा नहीं है, एग्री, मैं तो एग्री करता हूँ इसमें नहीं है भाई। लेकिन धीरे धीरे भाई प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे यहाँ पे भी। अभी मैंने देखा है कि स्टेट क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लीग और वो सारी चीजें हो रही है स्टार्ट। जैसे मैंने बोला ये अहमदाबाद यूनाइटेड करके नया क्लब स्टार्ट हुआ है, यार एएफसी, फिर गांधीनगर फुटबॉल जीएनएफसी जिन्होंने अभी अंडर 17 जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें क्वार्टर फाइनल तक गए थे आई थिंक वो। तो वहां पे उन्होंने भी अच्छा प्रोग्रेशन किया है। तो यहाँ पे भी छोटी छोटी एकेडमीज अभी स्टार्ट चालू होना हुई है। तो देखते हैं भाई किस तरह से डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल भाई फुल सपोर्ट भाई कुणाल महासेठ भाई, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। माइंडसेट भाई बोल रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल इज हेडिंग टुवर्ड्स राइट ट्रैक नाउ, नथिंग टू वरी। नथिंग टू वरी में सिंपल सा इतना है कि अभी हमें क्या बोलते हैं कि ऑफ ट्रैक नहीं हो जाना है। ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसी की डायरेक्शन में जाना है, चाहे कोई भी मैनेजमेंट में आ जाए, ये मैनेजमेंट हो इससे नेक्स्ट वाला हो, हमें ऑफ ट्रैक नहीं होना है और इस गति को आगे और भी बढ़ाना है ना कि कम होने देना है। तो सिंपल एज दैट माइंडसेट भाई, वाली बात है। तो आई थिंक काफी सारी बातें हमने कवर कर ली है एंड आज यहाँ तक रखेंगे। और कल आपने वैसे प्रिडिक्शन नहीं दिया गाइस, कल के मैच का प्रिडिक्शन एक दे दीजिए। मेरा मेरा प्रिडिक्शन रहेगा 2-1 टू मुंबई सिटी। आप अपना प्रिडिक्शन जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कल के मैच के लिए। मेरा प्रिडिक्शन है 2-1 गाइस। कल मेरे को लगता है कि ये 2 लेग गेम है तो 2-1 भी शायद ना देखने को मिले, 1-0 या फिर ऐसे भी देख जाए 1-1, क्योंकि कल मेरे को लगता है कि दोनों ही टीम थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जा सकती है क्योंकि फर्स्ट लेग है और उनको पता है कि सेकंड लेग भी है। तो ऐसा ना हो कि फर्स्ट लेग में 3-0 से डाउन हो जाए या फिर 2-3 गोल की क्या बोलते हैं कि डेफिसिट के सेकंड लेग जाना पड़े, तो वो फिर अपर हिल टास्क हो जाएगा। तो थोड़ा सा कल थोड़ा दोनों ही टीम थोड़ा सा सीट बैक करके भी खेल सकती है मेरे हिसाब से। फुटबॉल फैन कहता है सिर्फ इंडियन फुटबॉल देखेंगे, क्रिकेट फैन भी यही कहता है, लेकिन सभी स्पोर्ट पर जितने पर तो एक ही फ्लैग ऊपर उठता है, जय हिंद। वही एग्जैक्टली राजीव भाई, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग भाई, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग और वो हमें समझनी चाहिए।
PSG confirmed that Neymar season is over. He will have to undergo surgery and is out for 3. ओ हो यार, अरे यार नेमार यार अपना करियर यार बगा यार, पूरा अपना करियर की माँ बहन कर दी यार उसने। आई थिंक 1-1 टुमारो, वो भी हो सकता है भाई। आस्थी साथिया जुड़े हमारे साथ, हेलो हेलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। भाई सोते वक्त देखूंगा आपकी आवाज, मुझे पीस मिलता है। अरे भाई साहब, अब पहले मैं आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, स्पेशल मेंशन भाई आपका मैं करना चाहूंगा कि आप पहले बंदे मिले हो कि जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल कमेंट, मेरे को अभी तक ये कमेंट किसी ने भी, मेरे को आई थिंक 8 मंथ हो चुके हैं चैनल स्टार्ट चालू किए हुए, आई थिंक हाँ जुलाई में मैंने चालू किया था। तो थैंक यू वेरी मच भाई, आप यार दिन मेरा मतलब दिन बना दिया आपने कि मेरे को लगता था, टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे ऑनेस्टली एक बात बताना चाहूंगा कि मैं जब व्यूज नहीं आता थे तब मैं ये सोचता था कि क्या लोगों को मेरी आवाज पसंद नहीं आ रही, क्या मेरा वो मतलब चेहरा पसंद नहीं आ रहा, क्या चीजें है कि लोग जुड़ते ही नहीं है। और दूसरे, क्योंकि आप दूसरे को भी देखते हैं तो उनके इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू यार, आपने दिन बना दिया मेरा। थैंक यू भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मतलब दिल खुश कर देता, वो वाली बात होगी भाई। तो थैंक यू वेरी मच। और बताइए गाइस, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो इसको यहीं पे रैप अप करेंगे। 1.25 घंटा होने आया है आई थिंक। एंड हर रोज गाइस 9 बजे आ जाना है आप सबको, इसी तरह से चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम इंडियन फुटबॉल तो उसके अंदर घुसेड़ ही देंगे, वो वाली बात है। तो उसका कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, और इसी तरह से बातें करते रहेंगे इंडियन फुटबॉल। कल जुड़ना है 7:15 क्योंकि कल है लाइव वॉच अलोंग बिटवीन मुंबई सिटी वर्सेस बेंगलुरु एफसी। तो पूरा मैच देखेंगे, मैच के बाद रिव्यू भी करेंगे उसका, रिव्यू भी सभी साथ में होगा, मैच साथ साथ में देखेंगे। पिक 11 प्लेयर्स फॉर मार्च फ्रेंडली माइंडसेट भाई, इसमें 11 प्लेयर्स पिक करने में दिक्कत एक है भाई, जो मैंने कल या परसों भी बताया था कि ये जो इगोर श्रमिक ने साले ने जो कमेंट कर दिया है ना कि भाई फाइनल वाले प्लेयर में नहीं लूंगा, तो जब तक फाइनलिस्ट कंफर्म नहीं हो जाते ना माइंडसेट पे, जैसे फाइनलिस्ट कंफर्म होते हैं 13 मार्च को, उसके बाद तुरंत मैं बनाऊंगा, मैं और मुसीर भाई एक वीडियो बनाएंगे, जो एक बनाएंगे स्टार्टिंग 11, तो वाला भाई सीन है माइंडसेट में, तब मैं पक्का बना दूंगा। क्योंकि ये जो ईगर स्टोमिक ने जो कमेंट कर दिए ना कि भाई फाइनल वाले नहीं लूंगा, तो अभी जज करना मुश्किल है, क्योंकि अगर मुंबई सिटी मान लीजिए चली गई तो भाई चांगते, अपू या बीरेन सिंह सब, बीरेन थामजा सबका वो क्या बोलते पत्ता कट हो जाएगा। तो अगर बेंगलुरु चली गई तो भाई सुनील सर, शिवा शक्ति, सबके पत्ते, संदेश जिंगान। तो इसीलिए थोड़ा सा वो मैं अभी रुक रहा हूँ, नहीं तो मेरे को वीडियो बनाना है। भाई डन, भाई डन लेग मुंबई में होगा क्या? नहीं नहीं, कल ही मुंबई में है भाई अभिषेक भाई, कल ही मुंबई में है, कल मुंबई फुटबॉल एरिना में है। सेकंड लेग वहां पे है कांतिवीरा में, बेंगलुरु में। भाई 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 मैं बंगाल से हूँ, क्या एटीके टू लखनऊ शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि बंगाल में मोहन बगान फैंस रिमूव प्रीटेक्स। सुरेंद्र कुमार, कल या परसों मैंने उसका इंटरव्यू देखा जो राजीव गोयन का है, उनको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एटीके आप हटा दीजिए, तो उन्होंने तो कोई ऐसा इंडिकेशन कल परसों जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सुरेंद्र कुमार जी, वहां पे नहीं दिया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मेरे को, मैं यहाँ पे एक ऑनेस्टली बात बताना चाहूंगा, मेरे को उतना ज्यादा पता नहीं है कि क्यों, मतलब आपका एटीके बहन बगान जो जो फैंस चाहते हैं कि एटीके रिमूव हो, लेकिन एज ए मैनेजमेंट आप देखें तो संजीव गोयन का ग्रुप जो आरपीजी ग्रुप है, दे हैव डन गुड इन मैनेजिंग द क्लब्स, ये मैं आपको बता सकता हूँ एटलीस्ट। क्योंकि आप एक ही क्लब ऐसे हो कि जिन्होंने जब से आप आए हो कंजिक्यूटिव 3 इयर्स अपने प्लेऑफ्स में क्या बोलते हैं कि एंट्री की है। आप अपना राइवल क्लब देख लो, वेस्ट बंगाल 3 सीजन से आए, 9, 10th एंड 9 फिनिश किया है। तो गोयन का ग्रुप भाई स्पोर्ट क्लब मैनेजमेंट में अच्छा है, उनका मैनेजमेंट अच्छा है भाई। लेकिन आप एटी के, अगर आपको मोहन बगान वो एक, क्योंकि आप पर्सनल वो दिल पे भी लगा होता है, मैं समझ सकता हूँ जो मोहन बगान फैंस है उसकी फीलिंग्स भी, तो वो वाली चीज है। तो अगर वो लखनऊ सेटअप करते हैं तो आपको फाइनेंशियली कितना आप स्टेबल हो, वो सारी चीजें भी मैटर करेगी भाई। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो चले जाए और मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल फिर वो आपको सपोर्ट ना रहे और डिक्लाइन भी हो जाए, तो ये देखिए एक वो वाला रास्ता है। तो आई थिंक दोनों ही अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाए कुछ, तो उससे बढ़िया कुछ बात होगी नहीं मेरे हिसाब से। तो वाला सीन है, लेट्स सी। लेकिन परसों जो उनको क्वेश्चन पूछा गया तब तो उन्होंने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट।
Yes, I do not agree with systemic not included finals. There is a 6 day gaps before the friendlies. एग्री, मैं भी इस बात से आपसे एग्री करता हूँ कि 6 दिन का जब गैप है तो क्यों आपको नहीं करना रहे। और भाई फीफा की विंडो इसी तरह से आती है, आप चाहे किसी भी कंट्रीज का देख लो, किसी भी क्लब का, कि वो आपके 3 4 5 दिन का ही गैप रहता है। अब जैसे आपका क्लब का लास्ट मैच होगा और उसके बाद तुरंत 3 4 दिनों के बाद फीफा विंडोज होगी, वो ऐसे ही आती है सारी फीफा विंडोज। तो अब तो क्योंकि इंडियन फुटबॉल भी पूरा कैलेंडर ईयर चलाने की बात चल रही है, क्योंकि अब इसके बाद हीरो कप है, फिर इंटर कॉन्टिनेंटल कप, सारे और भी डुरान कप भी है, सब कप क्लब होते जा रहे हैं। तो आप हर बार ये बहाना दोगे, हर बार ये बहाना बनाओगे कि भाई अब ये कंपटीशन का फाइनल है तो हम इसके प्लेयर नहीं लेंगे, तो वो तो मेरे को नहीं लगता कि भाई होना चाहिए बहाना। इगोर ने शायद वो ये बोला है कि इस आईएसएल फाइनल के बेसिस पे नहीं लूंगा, क्योंकि पहले जो टीम आईएसएल फाइनल में जाती थी 80% प्लेयर उसी टीम से ले लेते थे। आई एम नॉट, नहीं कुणाल भाई ऐसा नहीं बोला, मैं सुन रहा था। उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने 100% ऐसा नहीं बोलता कि लूंगा ही नहीं, लेकिन उसने ये जरूर बोला है कि भाई मैं उसके चांसेस कम है इंक्लूड करना, ऐसा उसने बोला है। उसके चांसेस इंक्लूड करना इन दिस 2 मैचेस इज वेरी वेरी लेस, तो वाला चीज है, तो ऐसा उसने बोला है। तो वाली बात है। तो दैट्स इट गाइज, यहाँ तक रखते हैं। बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, लास्ट में तो ले लेता हूँ 1 2 क्वेश्चन, बाकी यहीं पे रैप अप कर देंगे इसको। बाकी कल हर रोज अब तो जुड़ना ही है आप सबके साथ, और इसी तरह से बातें करनी है। और जैसे मैंने बोला, कोई भी भाई टॉपिक आप थंबनेल देख के मत सोच लेना कि भाई ये तो अब यहाँ पे यूरोप की बातें चल रही होगी। आप उसमें भाई इंडियन फुटबॉल को हमको घुसाट देना है, तो कोई वो वाली सीन होगी नहीं भाई। अरे सुरेंद्र कुमार भाई, ऑलवेज ऑलवेज भाई, कभी भी आप कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई भाई, उसमें वो कोई वाली बात नहीं है भाई। चांगते को लेना पड़ेगा, नहीं तो केस कर दूंगा। आई थिंक चांगते को अगर नहीं लिया तो उससे जितना डिसअपॉइंटेड होंगे, आई थिंक उतना सुनील सर से भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि चांगते को सभी इतना ज्यादा क्योंकि एक्साइटेड है देखने के लिए। आई थिंक वो एक अलग ही एक्साइटमेंट उसके अराउंड बन चुकी है चांगते को देखने के लिए। तो लेट्स होप कि जल्दी से भाई वो हमें देखने को मिल जाए। तो वाली बात है। तो बाकी गाइज यहाँ तक रखते हैं, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर मेरे को पूछिएगा, हम तो हर रोज जुड़ना ही है। और प्लीज गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से लाइव में जुड़ते रहिए, वीडियोस जो भी अपलोड करो उसमें लाइक एंड अपना कमेंट देते रहिए। आपका जो भी ओपिनियन हो ऑनेस्ट ओपिनियन बताते रहिए। आपको पसंद आए तो भी वो भी बताइए, ना पसंद आए क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन से लोगों के साथ करना है वो भी मेरे को सजेस्ट कीजिए। आप भी अगर उन लोगों से रेगुलरली कनेक्ट कर रहे हो तो उनको भी सजेस्ट कीजिए कि भाई ये चैनल है, आप इसके साथ कोलैब कीजिए, तो क्योंकि इजी हो जाता है। देखिए मेरी तरफ से तो पूरा एफर्ट रहेगा कि जितने लोगों तक मैं रीच कर पाऊँ, उनसे कॉन्टेक्ट बना पाऊँ, वो मैं करूंगा। जैसे त्रिमान रणवीर के साथ हमने किया था, फिर हमारे धनराज भाई के साथ किया, फिर रंजीत बजाज सर के साथ ऑलरेडी मैंने पहले भी कर रखा था, अभी भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट भी अरुणवा सर है, आगे और भी जैसे मैंने बोला कि प्लेयरों के साथ भी मैंने लाइनअप कर रहा हूँ। तो और भी आगे आने वाले टाइम में कि जो इंडियन फुटबॉल में इन्वॉल्व है, देखिए अरुणवा सर है, इन्होंने मुंबई सिटी एफसी के साथ भी स्टार्टिंग ईयर में जब आईएसएल स्टार्ट हुआ तब भी उन्होंने वर्क किया है। तो और वो अभी करंटली जर्मनी में है, वहां पे की फुटबॉल में भी वो अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। तो ऐसे लोगों को लाया जाए कि जिसको इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट में नॉलेज हो, जो वर्क कर रहे हो, ताकि और भी ज्यादा हमें भी पता चल सके कि भी क्या चल रहा है एटलीस्ट इंडियन फुटबॉल में। क्योंकि इंडियन फुटबॉल के बारे में न्यूज इकट्ठा करना जानना इज रियली डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट गाइस। मैं बताता हूँ आपको कि उतना इजीली आपको कुछ पता नहीं चलता भी क्या सीन चल रहा है। तो ऐसे ही लोगों से हमें कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, इनसे ही हमें और ज्यादा बातें करनी पड़ेगी, तभी हमें और ज्यादा पता चलेगा कि एग्जैक्टली इंडियन फुटबॉल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2 प्लेयर से बहुत उम्मीद है मुझे, चांगते हैं अपुया, पोटेंशियल है भाई दोनों में, डेफिनेटली एग्री, कंप्लीटली एग्री एग्री विथ यू कुणाल भाई ऑन दैट। आई थिंक मेरे को भी उन दोनों से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो लेट्स सी कि क्या वो इंडियन टीम में उस तरह की परफॉर्मेंस रिपीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। एंड लेट मी नो गाइज, आप में से किसी मैं ट्राई करूंगा मनी जो क्या बोलते हैं मणिपुर में जो मैचेस होने वाले इंडियंस टीम के, उसके टिकट्स लेने की। और मणिपुर से कोई भी हमें देख रहा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप टिकट का वहाँ पे इंतजाम कर सकते हैं तो जरूर कर दीजिए मेरे लिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर, मेरा एक वो है एम। और आप भी बताइए कि क्या इंडियन फुटबॉल या फिर आईएसएल के मैचेस
लाइव कवर करने चाहिए कि वहां पे जाके देख के व्लॉग बनाना चाहिए। क्या आप उसको पसंद करेंगे? तो मैं सोच सकता हूँ आगे आने वाले टाइम में कि किसी मैच को कवर करूँ उस तरह से, और उसके बाद पूरा मैच का लाइव व्लॉग लेके आऊँ। उस तरह की क्या कंटेंट आपको पसंद है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं ट्राई करूंगा उसको भी करने की। तो आप आपके सजेशन भाई ऑलवेज वेलकम रहेगा, तो मेरे को भी पता चलेगा, क्योंकि साथ में हमें ग्रो करना है इंडियन फुटबॉल को, और उसके बारे में इंटरेस्टिंग कंटेंट और भी ज्यादा बनाना है। तो पॉडकास्ट तो हम जरूर करेंगे काफी सारे लोगों के साथ, लेकिन इसके अलावा इस तरह का कंटेंट आपको क्या पसंद है कि इन मैच लाइव लोग जाके बनाना, तो वो भी बताइएगा जरूर। एंड मिलते हैं गाइज कल फिर से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड स्टे ट्यून टू मॉर्निंग वीडियो। मॉर्निंग में एक इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड हर रोज वीडियो आता है, तो उसके लिए उसको आप जरूर चेकआउट कीजिए, और रात को एक लाइव होगा। तो ये 2 चीजें चलती रहती है। कभी कभी जब कोई अर्जेंट काम आ जाता है तभी मैं नहीं करता हूँ, बाकी एक सुबह में एक वीडियो और रात को एक लाइव होता ही होता है, कोई भी टॉपिक पे, चाहे यूरोपियन हो, इंडियन हो, कोई भी हो, तो ये जनरली होता है। तो आप सबका इसी तरह से सपोर्ट बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मिलते हैं कल गाइस। इसी तरह से इंडियन फुटबॉल को भी आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज गाइस कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट।